promotional policy will be uh, open soon. It will come as a circular. We have started our pre-promotional training programs for you all. In the morning, we had a kickstart for the SC, ST and OBC group, and it will be a 5-day program. We believe that nobody wants to be aloof from the promotional training because all are interested in their career path. So from today, we are starting the voluntary pre-promotional training program. The sessions will be taken up by our LKMC and STC's people voluntarily. And everybody is welcome. Yesterday, we have issued one podcast, which uh, may not be all, but few might have heard that podcast that we are starting the sessions from today. Tomorrow, it was said tomorrow, so it is 5th of December. We welcome you all and we wish that you take full advantage of e-learning and take full advantage to resolve your queries. Please be attentive so that it is fruitful and it helps you in preparing for the examination. There will be sessions starting from today and up to 3rd of January 2023. Schedule we have already given in our PNB Knowledge Center under promotional corner for financial year 2022-23. As it was done last year, recording will be available for each of the program. But we request that you enlighten your fellow colleagues so that they join the live program. Because during the discussion, some queries may be raised in your mind, and it will be helpful that you get the queries resolved at the end of the session. Then it will be, the session will be taken, as we have already said, कि 14 training centers हैं हमारे across India and from LKMC, and soon we'll be uploading, probably tomorrow, we'll be uploading fingertip booklet, which has been prepared by one of our faculty member, Shri A.K. Singh, from one of the STCs. And we have question bank for more than 4,000 questions. Question bank for visually impaired employees. We are also taking care of them and we have made these available. Then Path Pradarshak booklet specifically focusing to our sub-staff will be issued later when the promotional policy is up. And I request you all people to participate in our quiz programs. We have recently started PNB Prayas and it is only to inculcate knowledge, and I hope that these quizzes will also help you uh, in your exams. Another request, those who of you have not got और वॉक 10 कदम, प्लीज 10 कदम चले, वो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में काम आएंगे. 10 नंबर जो कोई भी नहीं काट सकता है. जिन्होंने 10 नंबर ले लिए हैं, फोकस ऑन द स्टडीज एंड अदर्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉक 10 कदम. Happy learning, and I wish each one of you a very best of luck to you and the participants who will be joining later on or who will be going through the videos of such programs. I wish all of you a very best of luck, and I wish that when you are going through these sessions and along with this, you do your duty diligently and study separately. We have plenty of literature for promotion in our knowledge center. Please do use of that and that you can do while sitting at home.
before going to sleep, or early risers can make that benefit in the morning. So thank you very much and all the best to you. Then now Jinsi, Anthony, our one of the faculty member at Belapur, will be taking to today's session, and it is about ethics, KYC, and customer service. Happy learning to all of you. Thank you. Good evening, everyone. I hope I'm audible. Hello, good evening, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Hope everybody is keeping fine. मेरी आवाज आ रही है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज फर्स्ट सेशन आप लोगों के साथ कर रही हूँ. A lot of things are there which we have to study for our exams, but let us start our day, our first day, with ethics. Actually, when we think of ethics, the पहली ethics जो दिमाग में आती है वो है integrity. वही इंसान सबसे शानदार और सबसे शान है जो इरादे नेक और ईमान इंसान सब है जिसके इरादे नेक और ईमानदार हैं. इस नोट के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमें सक्सेस मिलता है and if it is without integrity, it's a failure. So integrity is doing the right thing even when no one is watching it. Agreed? On that note, we start again with our topic, ethics today. So what is ethical banking? What is ethical banking? Ethical banking involves consciousness of how bank practices affect the society and the environment. Actually, it shows the effect on our society and on this environment. There are 5 ethical rules, कह सकते हैं moral principles. Clear? 5 ethical rules क्या है? Autonomy, justice, beneficence, non-maleficence, fidelity. स्वत्व, अधिकार, न्याय, उपकार, गैर नुकसानदेह और सत्यनिष्ठा और विश्वस्तता के साथ काम करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे आप लोगों से ये बोलना है कि एथिक्स वो नैतिक सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देते हैं. सामान्य परिस्थितियों में तो हम आसानी से निर्णय ले लेते हैं, है कि नहीं? जब सामान्य परिस्थिति होती है तब हम आसानी से अपना निर्णय ले लेते हैं, परंतु जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब उनका सामना करना पड़ता है, तो ये हमारे नैतिक मूल्य अर्थात हमारे एथिक्स पर ही निर्भर करते हैं कि हम उन्हें कैसे डील करते हैं. एथिक्स व्यक्ति या समूह के संबंध में वो कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे ये तय होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. क्या हो गया? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा? यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है, सर के यहाँ पे नहीं आ रहा है शायद. मेरी वीडियो क्लियर आ रही है सबको? Is my video clear? No, ma'am, your video is kind of hazy. It's not clear. It's not clear. It's not clear. But my voice is clear, right? Yes, voice is okay. Ma'am, I think there's some problem with the camera. Voice is okay. Okay, thank you so much. तो एथिक्स के बारे में हम आगे बात करते हैं. बैंकों पर समस्त लोगों का बहुत भरोसा है. वो लोग इतना ज्यादा भरोसा करते हैं हमको, एक विशेष सम्मान देते हैं. इस कारण लोग अपने जीवन भर की जो परिश्रम की कमाई है, जीवन भर का की जो बचत किया हुआ रखा है, बैंक के पास देते हैं, बैंक के पास रखते हैं
और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके उस धन का प्रबंधन, हम उनके विश्वास को किस तरह बनाए रखते हैं। हमें अपना काम सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करना है। ये बात तो मुझे लगता है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज विद मी ऑन दिस। वी हैव अपने बैंक में अपना मिशन भी है, अपना विजन भी है। हमारा मिशन क्या है? क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। बीइंग अपना मिशन चॉइस फॉर क्रिएटिंग फॉर ऑल। हमारा विजन क्या है? टू पोजीशन पीएनबी as the most preferred bank to customer, the best place to work in for employees and a benchmark of excellence for the industry. नैतिक व्यवहार की भावना हमारे विजन और मिशन में स्पष्ट रूप से झलकती है। जब हम ध्यान से अगर अपने विजन को पढ़ें और अपने मिशन को पढ़ें तो दिखता है कि नैतिक व्यवहार को हम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंटीग्रिटी, क्या कहती है इंटीग्रिटी? कभी भी हमें सही कार्य करते रहना है, कोई हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो हम देखा नहीं गलत कर सकते हैं। हमें हमेशा ही सही काम करना है, सही वक्त पर सही काम। जो बाकी गाइडलाइंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो काम जो करना है वो हमें सही करना है। हम बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। ये सोचकर हमें काम करना है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से करेंगे। ये प्रण हमें लेना है। अशोभनीय गतिविधियों से हमें अपने आप को दूर रखना है, होने से हमें बचना चाहिए, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। हर जगह हमें अपनी इंटेग्रिटी का और अपनी बैंक के इमेज का ध्यान रहना ही चाहिए। As bankers, we must maintain prosperity and not share confidential information, with outsiders. जैसे कि unpublished financial results, potential acquisition and divestment, unpublished marketing, business plans, details of technology employed, ये सारी चीजें इनका ध्यान रखना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ में ही हमें अपने क्लाइंट्स के बारे में जो कभी भी किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए, जो हमारे बैंक के क्लाइंट्स हैं उनके बारे में कोई भी बात किसी के साथ भी हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। No employee shall attempt undue or outside influence for his or her interest in respect of matters pertaining to his or her personal things, especially with the service in the bank. Service उसके दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। Strictly prohibited activity है participation in political activities. किसी भी तरह के political activities में participate करना strictly prohibited है। Employees must adhere to proper decorum and etiquettes while using social media. हमें बहुत ध्यान चाहिए कि जब भी हम कोई भी चीज सोशल मीडिया में लिखते हैं या करते हैं, हमें मालूम, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर रिप्रेजेंटिंग पंजाब नेशनल। हमेशा अपना बैंक रहे। अगर अच्छा लिखती हूँ या अच्छा लिखता हूँ तो मैं मेरा बैंक का इमेज उससे जुड़ा हुआ है। So I should be very careful, or employees must adhere to proper decorum and etiquettes while using social media. I hope you all understand and agree with me this. Discrimination अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं चलता, चाहे वो किसी भी बेसिस पे क्यों ना, चाहे वो रेस, कल्चर, कलर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, किसी भी बेसिस पर हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर भी हो, इन सारी पे किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन हमारे बैंक में हम नहीं कर सकते। राइट? Sexual harassment at workplace in any form should not be allowed,
and not tolerated under any circumstances. This is one thing to be very careful about. Employees are ambassadors of the bank. जो हमारे employees हैं, हर एक employee जो है वो बैंक का ambassador है. We all know that importance of KYC and PMLA, Prevention of Money Laundering Act, banks के लिए, हमारे बैंक के लिए कितना important है. Laundering of money through bank can seriously damage its reputation. उस reputation हमारे अच्छे कस्टमर छोड़कर भी जा सकते हैं. तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम ऐसा कोई सीरियस डैमेज अपने इंस्टीट्यूशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना होने दें. So it's the responsibility of each and every employee to exercise due diligence, thereby complying with KYC guidelines at all times. Agreed? Yes or no? Agreed? आज हमारा टॉपिक जो है, जैसे मैम ने कहा, हमारा टॉपिक भी KYC है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. To end this ethics session, I would like to also say that everybody is supposed to have the deep support mind. When we come to our office, we should come properly dressed with having this right kind of dress code. The golden rules of ethics are: everything you want others to do to you, you shall do it to others. Everything you want others to do to you, you shall do it to others. The second one is, do not do to others that which you wish them to do to you. And the third one is, do not do anything to others that, if done to you, would cause harm to you. With that, I would like to end the session of ethics, and we can move forward to the topic which we all are going to discuss today. And we are actually going to try and understand the nitty-gritties of it, so that it can be helpful for us for our forthcoming. So to begin, as ma'am said, I would also each one of you the very best, and I'm sure each one of you is going to crack the examination and get promoted. So wishing you all the best, I would like to start the class with KYC. When we talk about KYC, why do we need KYC? What is the objective behind the KYC implementation? To observe bank from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities. KYC procedure also enables the bank to know and understand their customers and their potential and also like each associated. So this is the objective. So it's a bank to comply with all the legal and regulatory obligations in respect of KYC norms, AML standards, CFT measures. What is CFT? Combating financial terrorism. Is my voice clear? I just got a message that my voice is not clear. Is my voice clear? जी मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है. Thank you so much. Thank you so much. तो जिसने लिखा था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज अपना ऑडियो एक बार चेक करवा लीजिए. थैंक यू सो मच अवतार सिंह जी. थैंक यू गिरिजा मैम. Oh, really? Is it so? I think a few are getting it clear, and 3 people are not clear. Okay, now it is clear. Is it clear now? Video, I think they are looking into it, but audio is clear, everybody said.
So I was okay with the audio. Is my audio clear now? Okay. Thank you, Shambhu. Thank you, Shambhu. Thank you so much. Perfect. Thank you so much. Now, some important terms let us talk about. Who is a customer? Who is a customer? कस्टमर उसको कहते हैं जो बंदा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या किसी एक्टिविटी के लिए बैंक में आता है. It includes a person on whose behalf the person who is engaged in the transaction or activity is acting also. Walk-in customer वो होता है जो जिसका अकाउंट नहीं होगा हमारे पास, लेकिन ट्रांजैक्शन अंडरटेक करने के लिए अपने बैंक में आ जाता है. Customer due diligence means identifying and verifying the customer and the beneficial owner, right? FATCA. FATCA is something very common, popular. सब लोग उसके बारे में बात भी करते हैं. तो what is FATCA? FATCA means Foreign Account Tax Compliance Act of the United States of America, which inter alia requires foreign financial institutions to report about financial accounts held by US taxpayers or foreign entities in which US taxpayers hold a substantial ownership interest. इसी तरह यूएस का IGA है, Intergovernmental Agreement between the government of India and USA. उसमें यह है कि to improve the international tax compliance and to implement FATCA of the USA. Then there is another term which is called ongoing due diligence. Means regular monitoring of transaction करना है हमेशा हर accounts में ensure करना है कि consistent है जो कस्टमर ने अपना प्रोफाइल दिया है उसके साथ वो कंसिस्टेंट है. ऐसा नहीं कि उसके कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से तो 10,000 आना था और उसमें 10 लाख आ रहे हैं. एंड यू शुड नो वेयर द सोर्स ऑफ फंड्स इज. सोर्स ऑफ फंड्स क्या, कभी कभी यूज ऑफ फंड्स भी देखा जाता था. ठीक है. UCIC means unique customer identification code. All the accounts of an individual customer will be opened under his or her UCIC. The another term is shell bank. आप सबने सुना होगा शेल बैंक के बारे में. ये शेल बैंक मींस वो बैंक which is incorporated in a country लेकिन उसका कोई physical presence नहीं रहता and it is unaffiliated to any regulated financial group. Then there is another term, wire transfer. Means a transaction that is carried out directly or through a chain of transfers on behalf of the originator person through a bank by electronic means with a view to making money available to a beneficiary person or the bank. Then there is a term which is called non-face-to-face customers. और एक transaction भी. First, let us talk about non-face-to-face customers. Means customers who open accounts without visiting the branch, offices of the bank or meeting the officials of the bank. उनका non-face-to-face account खुलता है. Transaction means purchase करेंगे तो transaction, sale करेंगे तो transaction, loan देंगे तो transaction, pledge हुआ तो transaction, gift, transfer, delivery or any kind of that arrangement. Account open किया transaction, payment किया, receipt किया, जो भी किया, that is all transactions. What is PEPs? Politically exposed persons. They are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country. Example, head of states होंगे, governments, senior politicians होंगे, senior government, judicial, military officers होंगे, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, इस तरह से. तो ये आप लोग सब समझ गए. ये कुछ टर्म्स आपके साथ मुझे डिस्कस करना था. अब हम केवाईसी के बारे में बात करते हैं. फिर से कमिंग बैक टू आवर स्क्वायर वन. हमें कंप्लाई करना पड़ता है विद केवाईसी गाइडलाइंस. आई वुड रिक्वेस्ट no, that won't be possible.
So I'll try to be slow. I'll be slow. So I would like everyone to please note down what I am going to say now, because they are kind of a bit important, and that kind of questions do come in the exams. So yeah, I'll be continuing now. So we have to comply with KYC guidelines, which is issued by KYC guidelines. किसने issue किया है? KYC guidelines, हाँ, हम PPT बाद में आपके share कर देंगे. ठीक है? I'll ask how to share that. If there is a group or something. Okay, let us continue with the class now first, and then we'll take care of that. Towards the end, let us do that, because if we chat in between, then the flow stops and then it went. Correct. Thank you. Very good, Raman Kumarji. So KYC guidelines is issued by RBI. It is issued, very good, RBI. Under section 35, very good, Pankaj. Under section 35A of BR Act. इस अंडर सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट में ऑम्बुड्समैन भी है, क्लीन नोट पॉलिसी भी है. राइट, वेरी गुड जॉयदास. अब इसके अलावा द सेकेंड थिंग व्हिच वी हैव टू कंप्लाई विद इज द प्रोविजन ऑफ PMLA 2002 रूल 7. इसमें अब PMLA एक्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड है नहीं है. So one of the questions is like, PMLA is defined in money laundering, etc., etc., etc. It is not defined in money laundering. But illegal money, or it is a process to convert illegal money. Very good, Pramodji. Or money of crime, जो crime से आया हुआ money, through a complex chain of transactions done through financial institutions. That is, converting illegal money to legal money through banking channels. Again. So what is money laundering? It is a process of to convert illegal money. Correct. These are the three-step process. This is the three-step process in money laundering. What is that? I did not get the name there, but brilliant answer. It is placement, layering, and integration. It is placement, layering, and integration. ठीक है, ये भी question आता है. What is placement? Now, what is placement? Breaking up of large amount of cash. Breaking up of large amount of cash into less conspicuous, smaller sums to deposit directly into a bank account. That is one way of doing the placement of wrong money. Adding cash, second one is adding cash from crime to legitimate takings of business with little or no variable cost. Fake invoicing karte hain. And the third one is hiding beneficial owner's identity through trusts and offshore companies or using foreign bank accounts. This is what is placement. Now, next one is layering. Again, a question which comes in from this. Moving funds around. पैसा घुमाते रहते हैं. Moving funds around to distance them from their source. Source पता नहीं चलना चाहिए. इसलिए उसको distance करते हैं. तो they move the money around. And also to disguise the money trail. उधर उधर सब जगह they will move the money around. So that वो trail भी ना मिल सके. Then they will purchase and sell investments or move through a series of accounts in banks around the globe. That is the second way of doing the layering. They layer it up, disguising the transfer as payments for goods or services or as a private loan to another company. ये तीसरा तरीका होता है. ये हुआ layering. अब हम आते हैं इसके तीसरे step की तरफ, that is integration. Funds are integrated into legitimate economy. पता ही नहीं चलता है. Investment in real estate, luxury assets, or business ventures. Then
This is all about the 3-step process of money laundering. ये हमने देख लिया. So all are with me, all good. Now the 4 aspects of RBI KYC policy. Is this also important? What are the 4 aspects of RBI KYC policy? It is Customer Acceptance Policy, CAP. Customer Acceptance Policy, CAP. The second one is CIP, that is Customer Identification Policy. जो Customer Acceptance Policy है वो Bank's own thing है. CIP, Customers Identification Policy, is from RBI. Monitoring of transactions, RBI बताता है. And then the fourth one is risk management. So CAP, CIP, risk management, very good. And monitoring of transaction. आपका नाम नहीं आया इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही, but very good. Risk management was the third one. Customer acceptance, customer identification, yes, very good. Yes, very good, Govind Rawat. ठीक है. अब अगर KYC करना है तो person or entity that maintain account with bank, उनका KYC करना है. बेनिफिशियल ओनर अगर कोई है तो उसका करना है. अब आप पूछोगे कि बेनिफिशियल ओनर कौन है? वो हो गया प्रभजीत. बेनिफिशियल ओनर कौन है? तो बेनिफिशियल ओनर एक नेचुरल पर्सन है या एक लिमिटेड कंपनी है जहां पर एक नेचुरल पर्सन का मोर देन 25% शेयर इन कैपिटल और प्लेज है, या पार्टनरशिप फर्म है जहां पर एक नेचुरल पर्सन का मोर देन 15% शेयर कैपिटल या प्लेज में है. वेरी गुड राहुल, ब्रिलियंट. तो वो बेनिफिशियल ओनर है. तो हमने जो हमारे बैंक में अकाउंट मेंटेन करता है उनका केवाईसी, उनका बेनिफिशियल ओनर का केवाईसी. और वॉक इन कस्टमर, अगर वॉक इन कस्टमर का उनका ट्रांजैक्शन जो है वो 50,000 एंड अबव है. वेरी गुड राहुल, तालियां बज जाए. ब्रिलियंट आंसर. इट इज 50,000 एंड अबव है तो उनका केवाईसी करना जरूरी है. ठीक है. अब वॉक इन कस्टमर के बारे में हम बात करें कि 50,000 एंड अबव, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी इक्वल टू और मोर देन 50,000. इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आता है मोर देन, लेस देन, इक्वल टू. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट. ओके. देन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें क्या हम सबका केवाईसी करवाते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हम सबका केवाईसी करवाते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम उन्हीं ऑफिस बेरर्स का करवाते हैं, लेकिन वेरी गुड आंसर्स आर कमिंग. सबका नहीं करवाते हैं, सिर्फ ऑफिस बेरर्स का. राइट प्रभजीत जी, सिर्फ ऑफिस बेरर्स का करवाते हैं. और जिनका क्रेडिट लिंकिंग है, अगर उनका क्रेडिट लिंकिंग है देन, यानी लोन दिया है अगर उनका, तो सबका करवाते हैं. अगर क्रेडिट लिंकिंग है यानी लोन दिया है तो हम सबका करवाते हैं. Am I clear till now? Now, next point is also important. Prevention of money laundering requirements to be complied with. कौन से ऐसे requirements हैं that has to be complied with? Obligations of banks under PML Act. पहला, to prepare record of large cash transactions above rupees 10 lakh. क्या बात है राहुल, वेरी गुड आंसर्स. ठीक है, अभी हम उस तरफ आ रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है. टू प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस दैट इज अबव रुपीस 10 लाख. सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो सकता है या टोटल ऑफ मंथली ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट सेपरेट तो भी हो सकता है. इसी तरह से अगर हम देखें कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अगर करना है तो रिकॉर्ड जो करते हैं, रिकॉर्ड को हमें प्रिजर्व करना होता है. सिंगल ट्रांजैक्शन 50,000 एंड अबव रिपोर्ट टू CTR, करेक्ट. और अगर 50,000 से नीचे है तो
नहीं, वेरी गुड, 10 years नहीं है, ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो 5 years. वेरी गुड प्रमोद कुमार जी, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. गुड राहुल, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रखना है. दूसरा, रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रखना है वो भी 5 years, लेकिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ रिलेशनशिप. क्लोज, वेरी गुड राहुल, फ्रॉम द सेसेशन ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है. रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन तो आप लोगों ने बता दिया कि 10 अबाउट 10 लाख करते हैं तो हमें सीटीआर देना होता है. ट्रांजैक्शन के बारे में हम, ट्रांजैक्शन क्या होता है, हम ट्रांजैक्शंस के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हमने ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा भी था. तो इट आल्सो इंक्लूड्स अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन कैश और चेक्स या किसी भी तरीके से, यूज ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं. और शेल बैंक के बारे में तो आपने देख लिया कि क्या होता है, वो आपने पता कर लिया. सो वी आर लाइक ऑन इट नाउ. नाउ वी कम टू द रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स. जो रिपोर्ट्स हैं या रिटर्न्स हैं जो पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए किसको भेजता है? जो रिटर्न्स, वेरी गुड Rahul, FIU. What does FIU stand for? FIU India. FIU India stands for Financial Intelligence Unit. It is a part of Ministry of Finance. It is a very good, Prabji ji. It's a part of Ministry of Finance, Government of India. Brilliant answer, Rajesh Verma ji. There are 3 types of reports. अभी बताया था, CTR, STR, है ना, CTR, STR बताया था. और एक और कौन सा है? काउंटरफीट करेंसी नोट्स के ऊपर भी होता है ना. तो CTR जो है मंथली जाता है. इसका रिटर्न, इसका रिपोर्ट FIU इंडिया को कब भेजते हैं? FIU इंडिया को कब भेजते हैं? 15. वेरी गुड अभिजीत, वेरी राइट आंसर. बट 15 व्हाट? 15th 15 days of succeeding month. Brilliant. Very good, Rajesh Sharma ji. So 15 days of next month. Okay. STR को कब भेजना होता है? STR को, it should be sent. STR is suspicious transaction report. Cash transaction report हो गया, suspicious transaction report. Very good answer. 7th day from confirmation of suspicion. It is to be sent within 7th day from confirmation of suspicion. Please note down all these things. ये सारे questions आते हैं. Counterfeit currency notes. इसका report कब भेजते हैं? To be sent within 15 days. 15 days from date of detection. 15 days from the date of detection. यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिए. 15 days from the date of detection. On suspicion कब? Day of confirmation of suspicion. अगर suspicious हुआ तो 7th day from the date of suspicion. So we have talked about the 4 components of KYC policy, caps, सारे बातें करी थी. CTR में हमने ये वाली बात तो करी कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं क्या और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है. कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, ये बताइए. कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? मुझे बहुत अच्छी क्लास लग रही है क्योंकि बहुत इंटरैक्टिव है आप लोग. यू आर कमिंग अप विद सो मेनी आंसर्स एंड it's so nice to see that everybody is updated. That means you are reading and updating yourself all the time. So CTR transaction, very good. क्या 10 lakhs किसका? Cash receipt more than 10 lakhs, cash payment more than 10 lakhs, integrally connected cash transactions also, both. ठीक है. Details of individual transaction below 50,000 need not be furnished. ये आप में से किसी एक ने बताया भी था. और STR, suspicious transaction report, this means attempted, मतलब attempt किया उसने कि वो गलत काम कर सके. करेक्ट.
करेक्ट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। अटेम्प्ट किया उसने गलत ट्रांजैक्शन करने का, चाहे वो कैश में किया हो या नहीं किया हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, डज नॉट हैव इकोनॉमिक रैशनल टू इट, और हमें ये कि ये है, ये टेररिज्म को फंड कर रहा है, फाइनेंस फॉर टेररिज्म है। अगर ये रीजंस की सस्पिशंस हमको आ जाती हैं और हमें बहुत उस सस्पिशन का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो फिर उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भेजा जाता है। Till now we are clear? You all with me? Yes? Thank you so much. Thank you, thank you. अब नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग। जब हम लोग केवाईसी की बात कर रहे हैं तो ये सारी बात करनी पड़ेगी। अकाउंट ओपनिंग में आधार नंबर लेते हैं और फोटो लेते हैं। क्या हमें पर्दानशी लेडी का फोटो लेना चाहिए? लेना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो हमें फोटो लेते समय वी मस्ट इंक्लूड पर्दानशी वुमन ऑल्सो। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो। और आधार नंबर जो है उसमें जो सब्सिडी का बेनिफिट लेते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है। जो सब्सिडी का बेनिफिट लेते हैं उनके लिए आधार नंबर देना मैंडेटरी होता है। हाँ हाँ, करवाते हैं, अभी वो भी करवाते हैं। लेकिन जो सब्सिडी नहीं लेते हैं उनके लिए ऑप्शनल रहता है। अगर वो अपने आप देना चाहते हैं तो वी आर हैप्पी टू हैव इट, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन इस आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन किससे करते हैं? इस आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? यस, इट इज करेक्ट। So it is done using a eKYC authentication facility of UIDAI. What is UIDAI? What is UIDAI? It is Unique Identification Authority of India. Okay? KYC में बैंक का, जैसे केवाईसी में जो बैंक है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी करेक्ट, गुड प्रमोद। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इन सबको केवाईसी में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसीज को, इन सबको केवाईसी की भाषा में क्या बोला जाता है? नहीं, वो तो सीजीटीएमएससी में है। बोला जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी। बोला जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी, राइट, आरई, रिपोर्टिंग एंटिटी कहते हैं। पैन नंबर अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन दे सकते हैं फॉर्म 60 में। इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है क्या? इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है क्या? नो। वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, राइट आंसर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ओवीडीज का नाम सुना है? कितने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं? 6। वेरी गुड। कौन कौन से हैं? 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं बताइए? आधार, पैन, नहीं 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 नहीं, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, मनरेगा, पॉपुलेशन, किसी ने पॉपुलेशन लिखा था। So it is passport. One is passport. Second is driving license. Third is voter ID, election commission से जो मिला है. मनरेगा job card. Then entry of national population register. Entry of national population register. और आधार, proof of possession of आधार, कि इनके पास है, उसका proof होना चाहिए बस कि इनके पास आधार है. Proof of possession of आधार. ठीक है? हाँ, PAN is not included in it. It does not have address. Okay, it is like OVD कौन से ये नहीं होते हैं?
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओवीडी नहीं होते हैं? क्या राशन कार्ड होता है? नहीं होता। पैन कार्ड होता है? यूटिलिटी बिल होता है? तो राशन कार्ड, पैन, ये भी आप लिख लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। राशन कार्ड, पैन और यूटिलिटी बिल जो है वो ओवीडी नहीं है, बट इट्स कैन बी यूज्ड एज एड्रेस प्रूफ। इट कैन बी यूज्ड एज एड्रेस प्रूफ। अब इसमें भी अगर प्रेजेंट एड्रेस में और ओवीडी के एड्रेस में डिफरेंस आ गया, करेक्ट, 2 months ओल्ड, यहीं पर आ रहे थे, उसी बात पर आ रहे थे। अगर प्रेजेंट एड्रेस में और ओवीडी के एड्रेस में डिफरेंस आ गया, तो डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर 3 months, यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन 2 months, ब्रिलियंट आंसर, विच इज नॉट मोर देन 2 months ओल्ड। फिर दूसरा है प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर विद एड्रेस, letter of allotment of accommodation from employer in case वो बंदा, वो कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट में वर्क करता हो, पीएसयू, पीएसबी या कोई लिस्टेड कंपनी में हो, लेकिन 3 महीने में आपको उनसे रिवाइज्ड ओवीडी लेना बहुत जरूरी है। गॉट इट? अब हम कुछ अकाउंट्स देख लेते हैं जो बेसिकली बिना ओवीडी के हम खोलते हैं। तो स्मॉल अकाउंट, स्मॉल अकाउंट सुना है? करेक्ट राहुल। इफ अ पर्सन डज नॉट हैव ओवीडी, तो कैसे खोलते हैं अकाउंट? स्मॉल अकाउंट कैसे खोलते हैं? यस, स्मॉल अकाउंट बीएसबीडीए पे आते हैं हम नवनीत, अभी हम स्मॉल अकाउंट की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस से हम अकाउंट खोलते हैं, पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। स्मॉल अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या है? मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? वेरी गुड, 50,000। टोटल क्रेडिट्स कितना हो सकता है? टोटल क्रेडिट्स 1 लाख, ब्रिलियंट आंसर। टोटल विड्रॉल एंड ट्रांसफर 10,000, क्या बात है, वेरी गुड। टोटल विड्रॉल एंड ट्रांसफर 10,000। फॉरेन रेमिटेंस इसमें क्रेडिट कर सकते हैं क्या? फॉरेन रेमिटेंस इसमें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने यस लिखा है तो प्लीज करेक्ट इट। विद इन 12 months ऑफ ओवीडी सबमिट करना जरूरी है। अब इसके साथ, अब अगर नहीं सबमिट किया तो क्या करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे, बट उससे पहले जो आपने बोला SBBDA, SBBDA उसको क्या है? व्हाट इज BSBDA? BSBDA अकाउंट क्या है? वो बेसिक, व्हाट इज इट? इट इज बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। करेक्ट, वेरी गुड प्रमोद, राइट आंसर। तो ये किससे कितना कितना इसमें मिनिमम, किससे इनिशियल डिपॉजिट कितना होता है? 0। ओपन विद अ 0 बैलेंस, इसमें नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम, ठीक है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्रेडिट 1 साल के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितना विड्रॉल 1 महीने में कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन जो आता है वो है मिनिमम विड्रॉल, मैक्सिमम नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम विड्रॉल टू बी अलाउड इन अ मंथ इज 4, ये याद रखिएगा। मिनिमम विड्रॉल्स टू बी अलाउड इन अ मंथ इज 4। केवाईसी रूल्स इस पे एप्लीकेबल है। रेस्ट्रिक्शंस इसमें क्या है? BSBDA अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? यस, वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि कोई और सेविंग फंड, सेविंग बैंक अकाउंट नहीं, सेविंग फंड। और अगर रविंद्र कुमार जी, रविंद्र, अगर कोई और सेविंग बैंक अकाउंट है
तो इस अकाउंट के खुलने के 30 दिन के अंदर उसे बस बंद करना होगा। इस अकाउंट के खुलने के 30 दिन के अंदर उसे बंद करना होगा। ठीक है, क्लियर टिल नाउ। और इसका दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये सिर्फ हमारे एक बैंक के साथ ही खोल सकता है। कस्टमर सिर्फ एक बैंक के साथ ही BSBD अकाउंट खोल सकता है, और उसमें हमें एक अंडरटेकिंग लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमें अंडरटेकिंग लेना बहुत जरूरी है। क्लियर? are you on the same page as me? Everybody is clear? Thank you so much. Thank you so much. अब नेक्स्ट है कि फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया में आया पढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच। फॉरेन स्टूडेंट्स जो इंडिया में आए, तो थैंक यू सो मच सचिन। अगर फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में आया तो एनआरओ अकाउंट खोला, कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा तो लेंगे। थैंक यू प्रभजीत सिंह, करेक्ट। अकाउंट खोला, एनआरओ अकाउंट खोला और कॉपी ऑफ पासपोर्ट लिया और वीजा लिया। और क्या लेंगे हम? ओवीडी और रीसेंट फोटोग्राफ लेंगे। करेक्ट, वेरी गुड आंसर। 30 डेज के अंदर क्या लेंगे? लोकल एड्रेस, लेटर ऑफरिंग एडमिशन फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेंगे। वेरी गुड अभिजीत। 30 डेज के विद इन ओपनिंग खुलने से 30 डेज के अंदर हम लोकल एड्रेस का प्रूफ जरूर ले लेंगे। लेकिन इस 30 डेज के अंदर मैक्सिमम क्रेडिट उसके अकाउंट में कितना हो सकता है? उसके अकाउंट में, वेरी गुड आंसर, आई एम सो हैप्पी, ब्रिलियंट आंसर, इज $1000, इट इज USD 1000। ब्यूटिफुल, वेरी गुड आंसर। अब अकाउंट अगर नॉन फेस टू फेस कस्टमर का खुला है, अकाउंट अगर नॉन फेस टू फेस कस्टमर का खुला है, तो बैलेंस ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट कितना? 1 लाख मैक्सिमम। सारे डिपॉजिट अकाउंट का मिलाकर 1 लाख मैक्सिमम। टोटल क्रेडिट इन 1 फाइनेंशियल ईयर सारे डिपॉजिट अकाउंट में 2 लाख मैक्सिमम। वेरी गुड सचिन, ब्रिलियंट आंसर्स। राहुल, बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। 2 लाख मैक्सिमम लिख लिया आप लोगों ने। बैलेंस ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट 1 लाख मैक्सिमम। टोटल क्रेडिट इन a financial year in all the deposit accounts it is maximum 2 lakhs। ठीक है, अब ट्रांसफर किया एक अकाउंट को एक ही बैंक के अंदर यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया, तो क्या हमें केवाईसी लेना है? लेना है? नहीं लेना है। यस क्यों लिख रहे हो? नहीं लेना है। ठीक है, केवाईसी नहीं लेना है। वेरी गुड, या आई विल डू दैट नवनीत, आई विल डू दैट। ठीक है, अब अकाउंट ओपनिंग अगर एक लिमिटेड कंपनी का है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे? अगर लिमिटेड कंपनी का अकाउंट खोलते हैं तो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेरी गुड। AOA, वेरी गुड। पैन नंबर, पैन जरूर लेंगे, है ना। बोर्ड रेजोल्यूशन एंड POA भी लेंगे, एंड OVD फॉर पर्सन ऑपरेटिंग द अकाउंट। वेरी गुड, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। उसमें एक चीज और ऐड करो, OVD फॉर द पर्सन ऑपरेटिंग द अकाउंट, उसका OVD भी लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या लेंगे? पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या लेंगे? पार्टनरशिप डीड लेंगे। वेरी गुड अभिजीत सिंह। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, पैन लेंगे, और इनका भी OVD फॉर पर्सन ऑपरेटिंग द अकाउंट। फिर ट्रस्ट के लिए क्या लेंगे? अगेन डीड लेंगे, रजिस्ट्रेशन डीड सर्टिफिकेट लेंगे, ट्रस्ट डीड लेंगे, पैन कार्ड लेंगे, OVD फॉर पर्सन ऑपरेटिंग द अकाउंट। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, तो हम क्या लेंगे? Resolution of managing body, POA granted to transact on its behalf,
पैन नंबर भी लेंगे और फिर वही ओवीडी सबका लेंगे, ओवीडी सबका लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो क्या ओवीडी क्या लेंगे? हाँ, पैन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यस, इंडिविजुअल, हाँ, फोटो, करेक्ट। अब हम आपको बताते हैं, जो हम लिस्ट आपको बताने वाले हैं उस लिस्ट में से कोई दो, एनी टू फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट इज registration certificate, license under shop and establishment account, sales and income tax return, GST certificate, लिख लीजिए आप लोग, registration certificate, license under shop and establishment act, sales and income tax return, GST certificate, certificate issued by CST, VAT and GST, import export code, IEC, very good Venkatesh, certificate of practice issued by professional body, complete income tax returns, utility bills, utility bills, इनमें से any two, इनमें से any two, yes, okay. Now NRI, NRI में क्या लेंगे हम? पैन लेंगे अगर है तो, नहीं तो फॉर्म 60, और वन रीसेंट फोटोग्राफ, passport, copy of an OVD with details of identity and address. For details of address, letter issued by foreign embassy or mission in India. Correct? ये लेंगे। अब हमने सारी बातें बता ली, अलग अलग अकाउंट्स के बारे में बात कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि सब में क्या क्या हम लेंगे, किस किस तरह की चीजें मतलब किसी में दो लेंगे, किसी में सारे लेंगे, तो व्हाट ऑल ओवीडीज आर रिक्वायर्ड व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट एंड हाउ विजिलेंट वी शुड बी, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमने अभी क्या देखा, सीएपी देख लिया, सीआईपी देख लिया, मॉनिटरिंग भी देख लिया। अब हमारा चौथा क्या था? रिस्क क्लासिफिकेशन, है ना, रिस्क मैनेजमेंट। चौथा क्या था? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क क्लासिफिकेशन नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बाबा। तो रिस्क क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? लो, मीडियम या हाई रिस्क। लो में कौन कौन से कस्टमर्स आते हैं? लो में, वेरी गुड, लो में कौन कौन से कस्टमर्स आते हैं? सैलरीड, पेंशनर्स, ठीक है, सैलरीड आ गए, पेंशनर्स आ गए, फिर अकाउंट विद स्मॉल बैलेंसेस, लिख लीजिए, अकाउंट विद स्मॉल बैलेंसेस एंड लो टर्नओवर। स्मॉल अकाउंट जैसे कि बीएसबीडी अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, उनकी बात कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट्स, ये सब आते हैं लो रिस्क कैटेगरी में। मीडियम रिस्क कैटेगरी में क्या आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, वेरी गुड, लिमिटेड कंपनी, वेरी गुड, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एचयूएफ भी इसी में आता है, ठीक है। हाई में क्या क्या आता है? हाई में बताइए। वेरी गुड, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, करेक्ट, पेप आ गए, एनआरई आ गए, ओके, एचएनआई आ गए, वेरी गुड। सो आई विल, हाँ ठीक है, तो 3 बताया आप लोगों ने, रिपीट हुआ। तो नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स आ गए, फिर एचएनआई आ गए, फिर ट्रस्ट भी आता है, ट्रस्ट भी आता है, एनजीओस एंड क्लब सोसाइटी भी आता है। यस परमजीत, प्रभजीत जी, लिमिटेड कंपनी विथ क्लोज फैमिली शेयर होल्डर्स, जो लिमिटेड कंपनी में क्लोज फैमिली शेयर होल्डर्स हैं वो भी आता है। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, बुलियन डीलर्स, ज्वेलर्स, डायमंड मर्चेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब आते हैं हाई में, राइट, हाई रिस्क में ये सारे आते हैं।
bank should review the risk profile of all the customers at least once in 6 months. रिव्यू करना जरूरी होता है. पीरियोडिक अपडेशन की बात करते हैं. पीरियोडिक अपडेशन हाई रिस्क का कब हो, कितने टाइम पे होता है? हाई रिस्क का. वेरी गुड. 1 किसने लिखा? 1 गलत था. इट इज once in 2 years. मीडियम रिस्क का once in 8 years. once in 8 years. Very good. All are correct. Low risk ka once in 10 years. Everybody knows the answer. So all gets full marks. Brilliant answers. So low risk ka once in 10 years. अब इंडिविजुअल अकाउंट है, अगर उसमें केवाईसी के इंफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, जब आप जब अपडेशन के लिए बोलते हैं, बोला कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो क्या करना होगा हमें? तब क्या करना होगा? उन्होंने बोला कोई चेंज नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर. नो चेंज है तो अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर्स मेल आईडी, उसके मेल आईडी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उनसे लेंगे, या थ्रू एटीएम भी कर सकते हैं, डिजिटल चैनल्स या लेटर के थ्रू भी दे सकते हैं. अगर एड्रेस चेंज हुआ तो तब क्या करना है? एड्रेस चेंज हो गया तब क्या करना है? एक, इसमें भी एड्रेस प्रूफ तो लेना ही है, पर सेल्फ डिक्लेरेशन कि ये मेरा नया एड्रेस है, थ्रू मेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू भेजा जा सकता है. पॉजिटिव कंफर्मेशन करना इसमें बहुत जरूरी है. कब? 2 महीने के अंदर. पॉजिटिव कैसे किया जाएगा? Positive confirmation by address verification, letter or contact point verification. Address verification, letter or contact point verification. ठीक है? We may ask for the revised OVD. ये जब एड्रेस चेंज का होता है तो we can ask for the revised OVD also for confirmation. ठीक है? Till now it's clear? हाँ, वो भी भेजते हैं, पर उसके उस समय लेटर ऑफ थैंक्स के टाइम तो उनका चेंज नहीं हुआ होगा ना. जब चेंज होता है तब हमें ये करना होता है, और उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन लेना है, लेकिन बाद में ये सारा प्रोसेस करना होता है. ठीक है? सो टिल नाउ एवरीबडी इज क्लियर विद केवाईसी. जो जो हम लोगों ने पढ़ा है, लिख भी लिया आप लोगों ने, याद भी हो गया, एंड यू आर रेडी. ऑल गुड, वेरी गुड. थैंक यू जीपी. थैंक्स अ लॉट. Now we go to our next thing, which is CKYC registry. CKYC registry क्या है? What is CKYC? KYC तो सुना है आप लोगों ने, EKYC सुना है आप लोगों ने. चलो EKYC देख लेते हैं. EKYC है एक पेपरलेस नो योर कस्टमर प्रोसीजर wherein the identity and address of the user are verified electronically through Aadhaar authentication. समझे? A paperless know your customer procedure हाँ बिल्कुल, wherein the identity and address of the user are verified electronically through Aadhaar authentication. Understood? इसके बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक है जीरो चांस ऑफ इनपर्सनेशन होता है. जीरो, वेरी गुड, पेपरलेस होता है. जीरो चांस ऑफ इम्पर्सनेशन होता है. इंस्टेंट ई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिल जाता है हमें. इंस्टेंट ई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिलता है. इंस्टेंट ई प्रूफ ऑफ एड्रेस मिल जाता है. शॉर्ट कस्टमर ऑनबोर्डिंग टाइम, ज्यादा टाइम नहीं उनके साथ बिताना पड़ता है ना. इसके अलावा सिंप्लीफाइड एक्विजिशन होता है कस्टमर का, और कस्टमर बहुत खुश रहता है तो कस्टमर फ्रेंडली भी हो जाता है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट, है ना. अब हम ये देखेंगे कि CKYC और EKYC में डिफरेंस क्या है, और वो देखने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि CKYC क्या है. सो व्हाट इज CKYC? CKYC is an initiative of the government of India, where the aim is to have a structure in place which allows investors to do their KYC only once. CKYC compliance will allow an investor to transact,
deal with all entities governed, regulated by Government of India. Regulator, RBI, SEBI, IRDA. हाँ, correct. Without the need to complete multiple KYC formalities, which is inconvenience, hindrance as of now. It will allow for large market participation by investors, easing their journey on the financial. हाँ, हर बार नहीं लेना पड़ेगा ना KYC कि हर जब भी कोई काम करे तो KYC लाके दो, तो वो उसकी जरूरत, तो CKYC ये इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के गाइडलाइंस जो हैं वो भी दिए गए हैं, बट फीचर्स क्या हैं? फीचर्स क्या है CKYC के? CKYC एक 14 डिजिट का नंबर होता है, क्या कहते हैं इसको? नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? कहां से क्लास ओवर? करेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? के, वेरी गुड, KYC identifier. CKYC identifier is a 14 digit linked with ID proof. Customer are safely stored in an electronic format. The documents submitted are verified with the issuer. All the concerned institutions are notified when there are changes in KYC details. सब institution को बता दिया जाता है. So it becomes so easy. Others, you'll have to check your audio. I think others are okay. और benefits क्या क्या है? CKYC registry enables financial companies to verify documents at ease. Investors need not submit KYC documents each time before starting a new financial relationship with a new financial company. Investors have access to update their details in the CKYC registry. You can also use the CKYC number when buying or investing in various financial instruments, जैसे कि insurance policy है, या mutual funds है, या stock markets है, उसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? अब डिफरेंस क्या है CKYC और EKYC में? EKYC और CKYC में डिफरेंस क्या है? EKYC जो है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए इन्वेस्टर्स आधार नंबर. किससे करते हैं? आधार नंबर के साथ. इट कैन बी डन वाया वन टाइम पासवर्ड या करेक्ट वन टाइम पासवर्ड या वाया बायोमेट्रिक्स. और CKYC क्या है? हमेशा के लिए, राइट? सो दैट इज अबाउट EKYC एंड CKYC. इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फाइल इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ क्लाइंट KYC रिकॉर्ड्स विद इन हाउ मेनी डेज? अकाउंट ओपनिंग करने के वेरी गुड, सचिन के लिए ताली बजाएं. Sachin had a right answer, Pawan had a right answer within days. This is a question. So file electronic copy of client's KYC records within 10 days of opening of account. I'm telling it again. Yeah, yes, I'm doing it again. You say CKYC registry में you have to file electronic copy of KYC records within 10 days of opening of account. Within 10 days of opening of account. CKYCR shall issue a KYC identification number, जिसके बारे में हमने कहा, which is KYC identifier, जो 14 digits का होता है, हर client के लिए अलग होता है. Very good answer, right? बिल्कुल सही. डिजिटल KYC क्या करता है? फोटो कैप्चर करता है कस्टमर का एंड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को भी कैप्चर करता है. An officer of the bank, along with the latitude and longitude of the location, where offline verification cannot be carried out. फिर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है. सुना है आप लोगों ने? बस थोड़ी देर और.
थोड़ी देर. I know you all are tired after a full day work. I know it was a tiring day for all of you, but थोड़ी सी देर और कर लेते हैं. ठीक है? Yes, right, Sumit Gupta. Are you okay to go ahead? Let's go ahead for a few more minutes. Yes, thank you so much. Thank you so much. तो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है, थैंक यू, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होता है फेशियल रिकॉग्निशन से. कैसे होता है? फेशियल रिकॉग्निशन से. एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द बैंक. yes, Vicky, sure. Consent based audio visual interaction with customer. Obtain identification formation and documents for CDD purpose. इसमें से आधे से ज्यादा तो मैंने पीपीटी देखा ही नहीं है. थोड़ा बहुत कुछ देखा होगा, पर वो सब कुछ पीपीटी में तो है नहीं. This is something which I prepared the notes for all of you. So I am talking from that. So let's see. इसलिए मैं कह रही थी कि note down कर लो, because I had just prepared the notes. So customer due diligence करना है by an authorized official of the bank by consent based audio visual interaction with the customer. Obtain identification information and documents for CDD purpose also. ये आपको रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. ठीक है? VCIP procedure. Official of the bank shall record, add video as well as capture the photograph also. OTP based Aadhaar eKYC authentication. KYC records को डाउनलोड करके, कहां से? CKYCR से. इक्विवेलेंट eOVD भी चलता है. ठीक है? अब मैं रैंडम कुछ क्वेश्चंस इसी से बेस्ड KYC से रिलेटेड ही है, कस्टमर सर्विस है. तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ जल्दी से. क्वेश्चंस मुझे ये बताइए, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक एज पर RBI स्टेट कैपिटल्स में कितने दिन का है? मैक्सिमम पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक्स एज पर RBI 7 days. वेरी गुड. जिसने 7 days, राहुल, यू आर करेक्ट. इट्स स्टेट कैपिटल्स, इट इज 7 days. मेजर cities, major cities, it is 3 days. 10 days, sorry. I read the one what you have written. It is 10 days. It is 10 days. Very good. Good answer. और दूसरे लोकेशन में it is 14 days. All are correct. So you all know that. अगर डिले हो गया तो पे इंटरेस्ट एज पर चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द बैंक. अगर डिले हो गया तो. ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमिटी बनी हुई है आप लोगों के ब्रांचेस में. तो ये मीटिंग एटलीस्ट कितने बार होना चाहिए? कब होना चाहिए? मंथली, वंस इन अ मंथ, है ना? वंस इन अ मंथ होना चाहिए. और उसमें मेंबर में कुछ स्पेशलिटी है. एक मेंबर जो होगा वो या तो सीनियर सिटीजन होना चाहिए या पेंशनर होना चाहिए. करेक्ट सचिन, वेरी गुड. गुड आफ्ताब. सेविंग बैंक अकाउंट में चेकबुक 25 लीज का शुड बी गिवन फॉर फ्री. करेक्ट नाज, एक्सेप्ट फॉर BSBD अकाउंट. करेक्ट. सीनियर सिटीजन के लिए डेडिकेटेड काउंटर्स होना जरूरी है. प्रेफरेंस टू देम दिया जाना चाहिए. लाइफ सर्टिफिकेट वो किसी भी ब्रांच में दे सकते हैं. ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ अकाउंट है जैसे डेट ऑफ बर्थ से लिंक्ड रहता है, तो वो सीनियर सिटीजन बन जाते हैं. राइट. डोर स्टेप हम किसको प्रोवाइड करते हैं? डोर स्टेप बैंकिंग फॉर 70 years. Very good, Abhijit. 70 years and above. पिकअप ऑफ कैश करते हैं, डिलीवरी ऑफ कैश करते हैं, डिलीवरी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट करते हैं, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड KYC डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब जो सर्विस टाइम, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, जो रीपेटी हो गया, लोन दिया हमने, वो लोन को वापस पूरा पे कर दिया, अब उसकी सिक्योरिटीज. अच्छा, आंसर पहले आ गया. Very good. Yes, it is the right answer. Within 15 working days of repayment of loan. Within 15 days, 15 working days of repayment of loan. It's right, Abhijit. If there is any change in terms and conditions by bank, like
मिनिमम बैलेंस कुछ बढ़ गया है या कुछ है तो कितने दिन में बताना चाहिए? 30 days नोटिस टू द कस्टमर। अगर बैंक ब्रांच क्लोज कर रहे हैं, क्लोजर हो रहा है ब्रांच का, तो क्या करना चाहिए? तो कब बनाना चाहिए? नहीं अभिजीत, नो, इट इज वेरी गुड सुमित, इट इज 2 months notice and with it is 2 months notice। ठीक है, अब दो चार आंसर्स इसके आरटीआई के भी देख लेते हैं। आरटीआई क्या है? व्हाट इज आरटीआई? व्हाट इज आरटीआई? या if no bank then 2 months, right? Right to information act। कौन अब क्वेश्चंस पूछ सकता है? any citizens can seek information from any public authority। क्या रीजन देना जरूरी है? क्या रीजन देना जरूरी है? नो, विदाउट गिविंग एनी रीजन। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेरी आता है, तो कितने टाइम के अंदर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है? 30 days के अंदर। वेरी गुड राहुल, दीपेंद्र, अमित, नवनीत। और अगर लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो गई तो 48 hours। no, 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 not 24, it is 48 hours। लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो गई तो 48 hours। अगर डिले हो गया तो क्या पेनल्टी है? नोट कर लीजिए, अगर डिले हो गया तो क्या पेनल्टी है? 250 rupees per day। वेरी गुड प्रमोद कुमार जी, इट इज 250 rupees per day। मैक्सिमम it is 25,000। very good Amit Kumar ji, maximum it is 25,000। इस तरह के जो पेपर्स होते हैं आरटीआई में जो आते हैं, इसका रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन टाइम कितना है? रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन टाइम कितना है? 5 to 8 years। पीरियड ऑफ अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को 30 days के अंदर, और अपील टू सीआईसी कर सकते हैं 90 days में। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। कोपरा के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। कोपरा इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं। इसका सिर्फ एक चीज हम आपको बता देते हैं, वाली क्लास में। सो दिस इज ओनली आरटीआई एंड वी डिड customer service also a bit, and then KYC was taken care along with ethics। I had a very nice time with you all. Hope you also had a nice time. Thank you so much, Naresh. It made my day light. It made my day light. Thank you so much, Pankaj. Thank you, Pramod, Suresh, Neha, Ankit, Harish, a lot of names. Thank you very much. Thanks a lot. It was, for me also, it was a very nice session because it was very interactive. And when there is an interactive session, you always feel like doing more. So I had a good time with you all. Thanks so much. Before leaving, I would wish you all a very lot of good wishes, lot of happiness, and nothing can stop you. I can stop you from getting promoted. It is only the willpower. It's only the willpower. So I would like to conclude this class by saying that खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Thank you so much. It was wonderful being with you. Thanks a lot. Wish you all the best, and I would congratulate you once you get promoted. Thank you, and have a good evening. Please do study well, study hard, and keep yourself healthy, safe. Thank you so much. मैम Thank थैंक you. यू। जी मैम, थैंक यू आज के सेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, और बहुत अच्छे से आपने जी। चीज़ को एक्सप्लेन किया। और होप सो कि सारे पार्टिसिपेंट इस चीज़ को के लिए यूज़फुल रहेगा ये वाला सेशन। और
मैं सारे साथियों से निवेदन करता हूं कि कल भी इसी समय 6 बजे 6 PM पर आप इसको सेशन को ज्वाइन करें और कंटिन्यू करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir.